Hello and welcome to Aditya Classes as we advance our discussion on production planning towards material requirement planning. Now we'll take master production schedule in brief and then we'll advance on to material requirement planning. Master production schedule, MPS or master production schedule. Now, what is master production schedule? It is, in a sense, disaggregation planning. Now, in last lecture we talked about aggregate planning. What was aggregate planning? Complete planning. All the products. If I am manufacturing soap A, soap B and soap C, I need 10 units of this, 20 units of this and 70 units of soap C. So aggregate planning was this was aggregate planning. Aggregate planning was telling me that I need to ensure a capacity of 100. I need to ensure that I can produce 100 units in the coming period. It could be a day, it could be a week, it could be month, quarter, year. This was aggregate planning. That whatever products you are producing, what is the aggregate plan that I need? Because that gives me the capacity. Because we talked in times of aggregate planning that an organization not only manufactures a 5 rupee pen, it also manufactures a 10 rupee pen, it also manufactures a 15 rupee pen, it also manufactures a 50 rupee pen, it also manufactures a 500 rupees pen. Now when it is manufacturing all these pens, it is not going to have different plants for these pens or these different packagings. What they do is they run lots. First lot of type A of 10 units, second lot of type B 20 units. The machines are adjusted, the machines are tweaked, the stickers are tweaked. For different pens they will be putting in different stickers. I will be putting in black stickers when I am manufacturing black pens. I will be putting in black caps so that they come up and cover the pen. Then when a lot of red pens is going on, I will put in the red stickers. The machine will put these, stick these red stickers. So the idea is on same machines, on same factory, on same plant, I am going to produce all these things. Now when I am producing all these things, so ultimately my time is limited in that facility. जो मेरी एक फैक्ट्री है उसके अंदर मेरे पास 30 दिन का ही काम किया जा सकता है. 8 घंटे 10 घंटे की जो शिफ्ट है इसका मतलब 240 घंटे कह लो, चाहे आप 300 घंटे कह लो. अगर 10 घंटे की शिफ्ट है तो 12 घंटे की शिफ्ट है तो 360 आवर्स का टाइम है. 360 आवर्स का टाइम काम ही मेरे यहाँ हो सकता है. उस 360 आवर्स में मेरी ये एग्रीगेट प्लानिंग है. इस एग्रीगेट प्लानिंग को अगर डिसएग्रीगेट कर दिया जाए, दिस इज डिसएग्रीगेशन. क्या है डिसएग्रीगेशन? कि इस कंप्लीट एग्रीगेट को जो आपने अगले 6 महीने के लिए तैयार किया है कि इतनी यूनिट्स बनाएंगे हम अलग अलग सोप्स की, अलग अलग पेन्स की, अलग अलग कार्स की, अलग अलग बाइक्स की, उसको डिसएग्रीगेट कर दो कि एक एक प्रोडक्ट की कितनी कितनी बनानी है. डिसएग्रीगेशन. और इसमें अगर मैं लगा देता हूं शेड्यूल. डिसएग्रीगेशन तो हो गया कि कौन सी यूनिट कितनी बनानी है, उसके साथ कब बनानी है. इफ यू आर एबल टू डिसएग्रीगेट टू दैट एक्सटेंट कि मेरे को ये तो पता पड़ गया कि अगले 6 महीने में मैं 6000 यूनिट्स बेचने वाला हूं, बट इस महीने फर्स्ट मंथ के अंदर कौन से प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स में बेच लूंगा. 6 महीने का शेड्यूल नहीं ले रहा हूं. 6 महीने का शेड्यूल ले रहा था, दैट वाज एग्रीगेट प्लानिंग. 6 महीने का सारे प्रोडक्ट्स का शेड्यूल ले रहा था, दैट वाज एग्रीगेट प्लानिंग. नाउ आई एम कमिंग डाउन टू इस महीने में, इन द कमिंग मंथ, हाउ मेनी यूनिट्स कैन आई सेल, हाउ मेनी यूनिट्स डू आई नीड टू प्रोड्यूस. प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम कितनी प्रोड्यूस करनी है उसका बात करेंगे. हाउ मेनी यूनिट्स डू आई नीड टू प्रोड्यूस. तो फ्रॉम दैट 6 मंथ्स कंप्लीट प्लान, इस महीने कब कौन सी कितनी यूनिट्स चाहिएंगी. 6000 में से हमारे को पता पड़ा कि 100 मेरे को अभी चाहिए. उस 100 में से भी कौन कौन सी कितनी चाहिए
ये जब मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं, दिस बिकम्स माय MPS, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। सो दिस इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इट स्पेसिफाइज, जब हमने ये कह दिया कि डिसएग्रीगेशन भी हो गया और शेड्यूल भी हो गया, मतलब एक एक प्रोडक्ट कब कब कितना कितना चाहिएगा, दिस इज MPS। इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। अगर हम यहां लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या है, इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का ए का कितना चाहिए, बी का कितना चाहिए, साइजिंग कितना कितना चाहिए, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 70 यूनिट, एंड टाइमिंग कब कब चाहिए। एक महीने में भी आ गए हैं हम कि चलिए इस मंथ में हमारे को 100 यूनिट्स चाहिए, 10, 20 एंड 70। ये 10 कब चाहिए, बाय 3rd मेरे को ये चाहिए, बाय 15th मेरे को ये चाहिए, बाय 25th मेरे को ये चाहिए। तो अब MPS किस डिटेल तक आ गया है, कब कौन सी कितनी देनी है। इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग कौन ऑफ ईच प्रोडक्ट, दिस इज MPS। इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये जो एग्रीगेट आपने तैयार किया था, इसको अगर डिसएग्रीगेट कर दिया जाए और इसका शेड्यूल तैयार कर दिया जाए, दैट इज MPS। देन सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स, ऑल्सो sequencing of individual jobs. What do we mean by sequencing of individual jobs? अब ये तो हमारे को 30 डेज के अंदर 10, 20 और 70 चाहिए। ये 70 हो सकता है पूरे एक बल्क में नहीं चाहिए हो, ये 70 में से हो सकता है 20 किसी और ने मंगाई है, 10 किसी और ने मंगाई है, 30 किसी और ने मंगाई है। तो अब हमारे को उस लेवल का भी शेड्यूल चाहिए। किस तरह का हो सकता है कि जब मैं इसका और फर्दर, अभी तो ये डिसएग्रीगेशन हुआ है, अगर मैं यहां देखूं तो ये जो एक्सरसाइज हुई है, ये क्या हुआ है, डिसएग्रीगेशन हुआ है। और इस डिसएग्रीगेशन का अगर एक शेड्यूल बना दिया जाए, वो शेड्यूल क्या कह रहा है हमारे को कि 3rd तक मेरे को देने ए की 10 यूनिट्स, 7th तक मेरे को देनी है बी की 5 यूनिट्स, 9th तक मेरे को देनी है सी की 20 यूनिट्स, 12th तक देनी है मेरे को बी की let's say 10 यूनिट्स, 18th तक देनी है सी की 25 यूनिट्स, 22nd तक देनी है बी की सी का कितना हो गया, 45 तो हो गया, लेट अस से अगर इस तरह का मेरे को शेड्यूल मिल जाए, दिस वाज डिसएग्रीगेशन की जो कंप्लीट कैपेसिटी है मेरी, जो मैं 30 दिन तक काम कर सकता हूं, जिसमें मैं 100 यूनिट्स टोटल बनाने का प्लान कर रहा हूं, उसमें से किस किस का कितना बनाना है, दिस वाज डिसएग्रीगेशन। MPS इज पहले तो ये भी पता करना है, साइजिंग पता करना है, एंड देन टाइमिंग। टाइमिंग इज कि इनका एक शेड्यूल भी तैयार किया जाए कि ये 10 देनी है, यस देनी है, वेरी गुड, कब देनी है। तो अब हमारे को पता पड़ रहा है कि 3rd को क्या करना है, ए की 10 यूनिट सप्लाई करनी है, ए की सारी सप्लाई कर दी हमने। 7th तक मेरे को बी की 5 यूनिट्स देनी है, फिर 12th तक मेरे को बी की 10 और यूनिट्स देनी है, फिर 22nd को मेरे को बी की 5 और यूनिट्स देनी है। तो ये क्या हो गया, 5 एंड 10 15 एंड 5 20। ये जो 20 यूनिट्स सप्लाई करनी है, ये कैसे करनी है, 5 तो देनी है 7th को, 10 देनी है 12th को और 5 देनी है 22nd को। दिस इज MPS। कब क्या देना है, इट इज रिवर्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेशन में तो हमने जोड़ दिया था, डिसएग्रीगेशन में हम अलग कर रहे हैं। दिस इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। उसी तरह से अगर सी की बात करें तो क्या हो रहा है, 20, 25, 15 एंड 10, 25 एंड 25, 7, 50 एंड 20, 70। तो ये जो 70 है, ये 70 एक साथ नहीं चाहिए, कब कब चाहिए, 9th को 20 यूनिट्स चाहिए, 18th को 25 फर्दर यूनिट्स चाहिए, 26th को 15 और यूनिट्स चाहिए, 30th को 10 और यूनिट्स चाहिए। दिस इज MPS। बस इतनी सी बात है। जहां हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा, इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग, साइजिंग एंड टाइमिंग, सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स। अब मेरे को एक सीक्वेंस भी पता पड़ गया है। सबसे पहले तो आई एम गोइंग इन फॉर ए,
अपनी मशीन्स को ट्यून कर रहा हूं जिससे कि वो रेड स्टिकर लगा सके। क्यों? क्योंकि मेरे को 3 तारीख तक 10 ये देने। फिर मेरे को इस सीक्वेंस में पता पड़ा कि इसके बाद मेरे को किस पे लग जाना है, बी पे लग जाना है। बी का प्रोडक्शन करना है, मेरे को दूसरे स्टिकर्स लगाने हैं, मेरे को मशीन्स को चेंज करना है, स्टिकर रोल्स को चेंज करना है, अंदर भरी जाने वाली इंक को चेंज करना है, क्योंकि नेक्स्ट मेरा क्या बनने वाला है, बी। फर्दर एडवांस करते हैं तो अब मैं वापस से उसको सेटअप को चेंज करूंगा और 20 सीज बनाने के लिए प्लानिंग करूंगा। बाइक्स के अंदर अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, हैंडल का अलग साइज हो सकता है, टैंक का अलग साइज हो सकता है। तो जब मैं इस स्लॉट के ऊपर आता हूं तो उन मशीन्स को इस तरह से ट्यून करता हूं, रॉ मटेरियल में टैंक्स को भी वो वाले ला के रखता हूं जो हमारी 220 सीसी वाले टैंक्स होंगे। तो अब हम यहां क्या करने वाले हैं, खाली टाइप सी की 20 यूनिट्स बनाने वाले। दिस इज सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स। कब क्या चाहिएगा। नाउ इसमें से जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए हैं हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ये हमारी ए की रिक्वायरमेंट्स हो गई। फिर बी की हमारे को कब कब रिक्वायरमेंट्स रहेगी, स्टोर को बताना तो पड़ेगा कि ये सब सामान मंगा के रखो, इन तारीख को मेरे को बी की रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है। तो जब बी के लिए हम प्लान करेंगे तो ये डेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस विल बी टॉक्ड अबाउट इन एमआरपी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एमआरपी दैट इज मटीरियल प्लानिंग, और इसको आजकल कहने लग गए हैं एमआरपी 1। एमआरपी 1 कहने लग गए क्योंकि एमआरपी 2 और आ चुका है, तो उसको जब हम ये टॉपिक क्लोज कर रहे होंगे तो विल टॉक अबाउट एमआरपी 2 ऑल्सो। फॉर नाउ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल क्या हुआ, एग्रीगेट से डिसएग्रीगेशन करना, उसका एक शेड्यूल तैयार कर देना कि कब क्या चीजें चाहिएगी। इस शेड्यूल में से इफ आई एम एबल टू एक्सट्रैक्ट माय ओन रिक्वायरमेंट्स, इस शेड्यूल में से अगर मैं अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर पाऊं, तो ये जो है ये डेटा यूज होगा सी के एमआरपी के लिए। व्हेन आई विल बी प्रिपेयरिंग एन एमआरपी फॉर सी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान फॉर सी, एमआरपी क्या होता है, प्रोडक्ट लेवल पे चला जाता है। एग्रीगेट को डिसएग्रीगेट तो किसने कर दिया, एमपीएस ने कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। अब जब अलग अलग हो गए तो मैं एक प्रोडक्ट उठाता हूं और उसके लिए अपना एक एमआरपी तैयार करता हूं, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो जो हमारी सी की रिक्वायरमेंट्स है, सी की क्या रिक्वायरमेंट्स है कि ऑरेंज स्टिकर चाहिएगा। तो अब मेरे को पता है कि ऑरेंज स्टिकर्स कब चाहिएंगे, एक तो 9th को कंप्लीट करना है, 18th को कंप्लीट करना है, 26th को कंप्लीट करना है, 30th को कंप्लीट करना है। दिस इज एमआरपी। क्या आपको पता पड़ जाए कि किस प्रोडक्ट की कब रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसी प्रोडक्ट की प्लानिंग करता हूं। अब हो सकता है कि मैं 2 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, मोटरसाइकिल बनाता हूं, बाइक बनाता हूं और स्कूटरेट बनाता हूं। फाइन, तो 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो अब मेरे को यह पता पड़ गया कि ये इन डेट्स पे मेरे को बाइक्स की डिलीवरीज करनी है। तो मैं जो सीट्स मंगवाऊंगा, मैं जो टायर्स मंगवाऊंगा, मैं जो टायर रिम्स मंगवाऊंगा, मैं जो पेट्रोल टैंक्स मंगवाऊंगा, फ्यूल टैंक्स मंगवाऊंगा, हैंडल्स मंगवाऊंगा, वो इन डेट्स पे तो कौन से आ जाने चाहिए मेरे पास, बाइक्स के आ जाने चाहिए। वेरएस जो बची हुई डेट्स हैं, जब मैं स्कूटरेट्स बनवा रहा हूं तो फिर मेरे को वो स्कूटरेट्स वाले हैंडल्स आ जाने चाहिए, टैंक्स आ जाने चाहिए, सीट्स आ जाने चाहिए, टायर्स एंड टायर रिम्स आ जाने चाहिए। ये चीज पता लगाना इस एमआरपी। तो इससे अलग अलग इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स निकालना, उन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स का शेड्यूल तैयार करना, दिस वाज एमपीएस। और इसमें से मैं अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्लान तैयार कर सकूं, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट सी के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, एमआरपी फॉर ए, एमआरपी फॉर बी, एमआरपी फॉर सी। तो एमआरपी के लिए तो हम अभी बात करेंगे। फॉर नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एमपीएस, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। इट स्पेसिफाइज साइजिंग एंड टाइमिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट, इट स्पेसिफाइज सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल jobs. Then short term allocation of resources to individual activities and operations. Short term allocation of अब हमारे को जब ये आइडिया लग गया है कि कब कितना चाहिएगा, व्हाट वाज दिस, डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन
डिसएग्रीगेशन। जब हमारे को डिसएग्रीगेशन हो गया है, मेरे को एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल के ऊपर मैंने एक शेड्यूल तक तैयार कर लिया है, तो नाउ आई हैव अ वेरी गुड आइडिया कि मेरे को कब किस प्रोडक्ट को कितना रिसोर्स शेड्यूल करना है, कितना टाइम उस मशीन पे लगेगा, कितने लोग उस मशीन पे हमारे को चाहिएंगे। हो सकता है कि मैं 2 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, जिनमें से एक तो सिंपल यूज एंड थ्रो है, जिसके अंदर बॉडी होती है और उसके अंदर इंक लगती है और टिप लगती है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा मैकेनिक्स मेरी लगती नहीं है, तो उसके ऊपर तो हो सकता है एक मशीन के अंदर ही सारा काम हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी इटसेल्फ रिफिल की तरह ही एक्ट कर रही है, उसके ऊपर कोई स्टिकर्स भी नहीं लग रहे हैं। उस बॉडी के ऊपर तो ऑलरेडी एनग्रेव्ड वो सिल्वर टाइप का लिखा हुआ आता है, लिंक LINC बनती जा रही है। वहीं पे एक दूसरा पेन है, वो मेरा गिफ्ट पेन है, वो मेरा 500 रुपये का पेन है, तो उसके अंदर अब क्या हो रहा है कि उस रिफिल भी बहुत सुंदर आ रही है, उसके ऊपर अलग से पेंट हो रहा है, अलग से फिनिशिंग हो रखी है, तो 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स जुड़ रहे हैं। पहला आ रहा है, उसके अंदर रिफिल जा रही है, उसके ऊपर कवर लग रहा है, उसके ऊपर दूसरा कवर आ रहा है, उसके साथ फिर 2 एडिशनल रिफिल्स अटैच की जा रही है, एक निब डाली जा रही है, पैकेजिंग तैयार हो रही है। तो ऐसा हो रहा है कि एक जो सिंपल पेन था यूज एंड थ्रो, उसके अंदर तो वो जो बॉडी इटसेल्फ थी उसी के अंदर इंक जा रही थी, तो वो रिफिल जैसा ही टाइप का था, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा मशीन्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मांग रहा था। वहीं जो दूसरा है वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज मांग रहा है। तो नाउ शॉर्ट टर्म एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज। क्या आपको ये भी आइडिया लग गया है कि कौन सी मशीन कहाँ पे कितनी देर के लिए देनी होगी, कितना एफर्ट लगेगा, कितने लोग चाहिएंगे? जो 500 रुपये वाला पेन है उसमें शायद 2 लोग चाहिएंगे, क्योंकि एक जना सिर्फ यही काउंट कर रहा है कि भाई इसके अंदर एक निब डालनी है, 2 स्पेशल बुलेट्स डालनी है, वो इंक वाली बुलेट्स डालनी है, पैकेजिंग करनी है, तो उसके अंदर हमारे को ज़्यादा रिसोर्सेज लग सकते हैं। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड MPS. Broadly, it is disaggregation and schedule, disaggregating the aggregate schedule and preparing a schedule. It specifies sizing and timing. Sizing and timing of each product, sequencing of individual jobs and short-term allocation. Short-term allocation. क्योंकि जैसा भी अपना ये सीक्वेंस बन रहा है, शेड्यूल बन रहा है, उस हिसाब से एलोकेशन होगा। जैसे कि सपोज हमारा ये वाला प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये जो डेट्स हैं हमारी 9, 18, 26, 30, इनकी प्लानिंग जब भी मैं करूंगा तो मेरे को बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। जबकि दूसरों की जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं तो बहुत रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, बहुत पावर नहीं लगेगी, हो सकता है प्लांट की एक विंग उस टाइम बंद भी रख सकें, तो बिजली की बचत हो रही है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड शॉर्ट टर्म एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड रिसोर्सेज। Fine. So this was about MPS, Master Production Schedule. अब जब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है तो हम MRP पूरा इसमें नहीं कवर कर पाएंगे, तो what I'll do is we'll break this lecture over here and we'll start with MRP in next lecture, Material Requirement Planning. So for now, this is it for Master Production Schedule. Next time when we meet, we'll talk about Material Requirement Planning, that is MRP 1.